So in today's class, we're going to start determinants. In the previous class, I explained you all the properties of determinants, and today I'll be starting questions based on those properties. So let's start. So everyone note down. Today we will begin with the first type sum and check your PDF. In PDF, if you see, number A is all about expanding a determinant, right? So please everyone follow PDF. So what I'm saying is PDF में number A जो है capital A, it's about expanding a determinant जो मैंने समझाया था. देखो 2 ऑर्डर का एक एग्जांपल, एक 3 ऑर्डर का एग्जांपल. उसके बाद नंबर बी के अंदर सारा फॉर्मूलाज है. ये फॉर्मूला पे बेस्ड 1 मार्क्स का सम आता है एग्जाम में. ठीक है, ये फॉर्मूला पे डिस्कशन हम लोग तब करेंगे जब अपने लोग पूरा डिटरमिनेंट्स कंप्लीट कर लेंगे. अदरवाइज अभी इसका कोई फायदा खास नहीं समझ में आएगा. जब तुमको पूरा डिटरमिनेंट्स पूरा थोड़ा समझ में आ जाएगा तब ये फॉर्मूला ज्यादा समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला यूज करने से कैसे एक डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना आसान होगा. तो हम लोग बाद में समझेंगे ये चीज. ओके, नंबर सी से यहाँ पे सम स्टार्ट है जो कि एग्जाम्स पे मतलब 4 मार्क्स में आता है. 4 मार्क्स ही आता है यूजुअली. यस, 4 मार्क्स में आता है. तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टाइप. ठीक है, टाइप देखना एक बार. तो वहां पे टाइप में अगर तुम नोट करो तो क्या है ध्यान देने. So we are starting the first type of sums today, where you will find that in a particular row or in a particular column, you will have all the elements equal to 1. Now when you get, last day भी मैंने बताया था, if in a determinant, एक particular row में या एक column में, if you get all 1, that is a gift for you. That score 4 marks, 4 out of 4, or full out of 4, whatever marks you have in that particular question. क्योंकि वो sum में, because in that particular sum, getting 2 zeros becomes very easy. So that's why we are doing the first type sum. Everyone note down, where you'll find that either in first row, I mean in any row or in any column, you'll find that all the elements are 1. Okay, so note down everyone. The first question of number C. So here I am taking LHS, and left hand side is 1 1 1 in column 1, x y z, x square y square z square in column 3, and we have to show that it is equal to x minus y, y minus z, z minus x. So note down everyone, we have in column 1 all these 3 elements equal to 1. So what we can do, we can make 2 elements equal to 0. So the 2 elements which I have pointed are separate, I mean differently in which rows? They are in row 1 and row 2. So which row is left? It is row 3. So using this row 3, we are going to change row 1 and row 2. Change means what? Means I am going to make these 2 elements equal to 0. Because you know that if in a determinant, if we have got 2 elements in any particular row or column equal to 0, then expansion becomes very easy. So can you tell me which is the operation I am going to perform to make these 2 elements, which is in row 1 and row 2? We have to, if I were to make it 0, which is the operation I should, I need to perform? Can you tell me? Can I? To R1 minus R3. So what I've done is I've kept row 3 constant. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? Row 1 tends to row 1 minus row 3, and row 2 tends to row 2 minus row 3. तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना एक बार. Row 1 tends to row 1 minus row 3, and row 2 tends to row 2 minus row 3. So row 1 minus row 3, if I do 1 minus 1 will be equal to 0. There are many students, I mean, so listen here, I am going to make these 2 elements equal to 0. So I have written this operation, row 1 tends to row 1 minus row 3. तो जब मैं row 1 minus row 3 करूंगा तो देखो ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये और ये सब्ट्रैक्ट होगा, x square minus z square होगा यहाँ पे. उसके बाद row 2 tends to row 2 minus row 3, 1 minus 1 0, यहाँ पे y minus z आ जाएगा और यहाँ पे y square minus z square आ जाएगा.
लोगों के दिमाग में ये भी बात आ रहा होगा कि अगर हमको ये प्रूफ करना है तो क्या मैंने डायरेक्ट एक्सपैंड क्यों नहीं कर दिया? I will not expand. I am going to use all the properties and I will make sure that जिस फॉर्म में मुझे रिजल्ट चाहिए उस फॉर्म में हमको रिजल्ट प्रॉपर्टीज को यूज करके आए. ओके, सो एवरीवन नोट डाउन व्हाट आई हैव डन. मैंने दो जीरोस लगा दिया. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जहां पे जिस कॉलम में ज्यादा जीरोस दिख रहा है मुझे उस कॉलम या उस रो को लेके एक्सपैंड करूंगा. मतलब मुझे यहाँ पे कॉलम 1 में 2 जीरो दिख रहे हैं. अब मैं इस कॉलम को लेके एक्सपैंड करने वाला हूं. सो आई विल बी राइटिंग हियर expanding along row column 1. now expansion का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको एक्सपैंड करके 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में ला देना. एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको एक्सपैंड करके ये जो 3 ऑर्डर है 3 रोज 3 कॉलम्स इसको 2 ऑर्डर में लाने का. सो वी हैव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो प्लस 1 इनटू इस पर्टिकुलर एलिमेंट का रोज और इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कॉलम्स हाइड कर दो. हाइड करने के बाद क्या बचा? इट इज x minus z y minus z in column 1 x square minus z square then y square minus z square in second column. देखो इसके बाद बहुत लोग क्या सोच रहा होगा कि अब तो हो ही गया 2 ऑर्डर में ला दिए तो अब इसको डायरेक्ट ऐसे क्यों ना सॉल्व कर ले. 2 2 जा 4 minus 3 5 जा 50. प्लीज अवॉइड दिस. यू अवॉइड दिस क्योंकि बहुत लोग हमको पता है इसके बाद क्या करता होगा. हमेशा जिसको थोड़ा बहुत आता होगा ये इसको सॉल्व इस तरह से कर रहा होगा. प्लीज अवॉइड दिस पार्ट. एंड ये नहीं करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी अभी भी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. स्टिल विल बी यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स. एंड व्हाट इज दैट? नोट डाउन. अगर हम यहाँ पे कुछ कॉमन देखो हम लोग को आंसर चाहिए यहाँ पे 1 2 और 3 चीज का प्रोडक्ट में चाहिए अपने लोग को आंसर. कितने चीज का? 1 2 3 चीज का प्रोडक्ट. तो हम क्या करेंगे देखना एक बार. कैन आई राइट x square minus z square as x minus z into x plus z? चेक वंस. क्या मैं a square minus b square का फॉर्मूला लगा के इसको a minus b into a plus b लिख सकता हूँ? सेम वे यहाँ पे इसमें y minus z into y plus z. Alright. Now do you find anything common row wise or column wise? You know that हम लोग कॉमन रेस्पेक्टिव रो रेस्पेक्टिव कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं. मतलब एक स्पेसिफिक रो से कुछ कॉमन है तो वहां से कॉमन लेंगे. तो कोई बता सकते हैं कुछ कॉमन अगर है तो बताओ तो. x minus z y minus z. x minus z कॉलम रो 1 से कॉमन है एंड y minus z रो 2 से कॉमन है. तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 x plus z 1 y plus z and you must write down taking x minus z and y minus z common from row 1 and row 2 respectively. I must write out कि हम कर क्या रहे हैं. देखो डिटरमिनेंट्स पे लिखना स्टेप्स बहुत कम इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये कैसे आया. ये ऑपरेशन करके आया. ये कैसे आया? हम लोगों ने एक्सपैंड किया कॉलम 1 लेके. हम लोगों ने ये कैसे किया? यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम रो 1 से ये कॉमन लिया रो 2 से y minus z कॉमन. तो मुझे एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अपने लोग को आंसर चाहिए 1 2 3 चीज का प्रोडक्ट है. देखो आउट ऑफ दीस 3 थिंग्स हम लोग को 2 चीज मिल चुका है. देखो ये 2 चीज मिल चुका है कि नहीं. देखो अब हमको पता है कि जो तीसरा चीज है वो कौन सा क्या है बताओ. तीसरा चीज कहाँ मिलेगा? तीसरा चीज अब हमको पता है कि वो मुझे इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. समझ में आया? तो 1 into y plus z minus 1 into x plus z. And if you open the bracket, you get, I hope you got this, 1 into y plus z minus 1 into x plus z. And if you open the bracket, you get this much. अब देखो यहाँ z कैंसिल हो गया, बचा y minus x. ठीक है, हो गया. आगे 3 चीज का प्रोडक्ट में चाहिए था, 3 चीज का प्रोडक्ट में आ गया आंसर. बट आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं किया. तो मैच कराने में कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग थोड़ा सा लास्ट में हम लोग एडजस्टमेंट्स कर देंगे. क्या मैं y minus x का माइनस कॉमन लेके क्या मैं इसको x minus y लिख सकता हूँ? क्लियर. उसके बाद चाहिए मुझे y minus z. ये रहा y minus z दिख रहा है. उसके बाद चाहिए मुझे z minus x. तो यहाँ से मैं माइनस n कॉमन ले करके इसको z minus x लिख दूंगा. तो लास्ट में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव ऑन द राइट हैंड साइड. ऑलराइट एवरीवन, now you can start copying. And after copying this sum, everyone will try the next question, which is just similar to this. एकदम similar है.
ठीक है, एकदम इसी के जैसे, एंड दैट इज सम नंबर 5. You all will be trying number 1 का and C का क्वेश्चन नंबर 5. I hope you all have heard. C का इसके बाद नंबर 5 तुम लोग सबको ट्राई करेगा, ठीक है. C का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो. See, there is a confusion here. I took x minus z, y minus z common, so this is the result left. Now, as I know that I need product of 1, 2, third factor is clearly this. You know that how to find out determinant value of 3 into 3 order? Sorry, 2 into 2 order. Okay, sir. So the same thing I did, but please note down. वो same चीज मैंने इस step के बाद क्यों नहीं किया? Because please note down. ये same चीज मैंने इस step के बाद क्यों नहीं किया? Because अपने लोगों को आंसर 3 चीज का प्रोडक्ट में चाहिए था, तो पहले मैं ये सोचा कि पहले मैं प्रॉपर्टीज को लगा करके मैं कॉमन लाता. Let's be very systematic. Let's go in a systematic way so that when we move to the higher level questions, these particular methods, this particular approach will help us in making some very easy. All right, and nothing more than this. It is not that if you solve after this, you will get 0. No, you will get the marks. But actually, I don't prefer these methods, because these are not systematic way. Because when you are starting from basic level, you must know all possible ways. अगर तुम्हारा habit basic level से ही नहीं है वो सब चीज करने का, properties use करके सबको लाने का, तो फिर वो high level questions में काफी difficulty आती है. Okay, so please copy it down and do the next sum. C का number 5. Hurry. So note down question number 5. Right? 5 number दिया ना. तो 5 नंबर का मैं LHS ले रहा हूँ सबसे पहले. And we have to show that it is equal to alpha minus beta, beta minus gamma. Okay, alpha minus beta, beta minus gamma, and gamma minus alpha. So I said you that if you get 1, 1, 1, that is a gift sum for you, because you just have to make 2 zeros and expand it and make it 2 order determinant first. So what I am doing in the sum is and making 2 elements 0. So suppose if I have thought of making this 2 element 0, this is in column 1, this is separately in column 2, and this element which is left is in column 3. So I'm going to use column 3 to change column 1 and column 4. And this you can do by keeping any one column constant. That is, यहाँ पे मैंने column 3 को fix रखा है, तुम लोग column 2 को भी fix रख सकते हो, column 1 को भी fix रख सकते हो. That is up to you. So column 1 tends to column 1 minus column 3. तो देखो column 1 minus column 3 जब कर रहा हूं ना, तो ये और ये subtract होके यहाँ पे आ जाएगा. Alpha minus gamma, beta gamma minus alpha beta. Column 2 tends to column 2 minus column 3. 0. Beta minus gamma, gamma minus gamma, alpha minus alpha beta. Column 3 जैसा है वैसे हम लोग इसको रखते हैं. अब नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे रो 1 को लेके एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है. सो वी हैव प्लस माइनस प्लस. यू नो दैट वी हैव टू राइट ओनली प्लस 1 इनटू. वी आर नॉट राइटिंग दिस टू डजंट मीन दैट वी आर नॉट एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1. एक्सपेंशन हम लोग एक रो या कॉलम को लेके ही कर सकते हैं, लेकिन रो 1 में ये 2 एलिमेंट 0 है तो मुझे दिखाना नहीं पड़ रहा, और फिर मुझे तीसरा एलिमेंट उसके बाद रोज एंड कॉलम्स को हाइड करके अल्फा माइनस गामा, बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा लिख सकते हैं. Okay, you can write down expanding along. ये सब चीज लिखना जरूरी है. रो 1. Then we find that मुझे आंसर 3 चीज का प्रोडक्ट में चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं बीटा कॉमन अगर लूँ, देखो एक बार ध्यान से, अगर मैं बीटा कॉमन लूँ तो अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा है, लेकिन अगर मैं माइनस बीटा कॉमन लूँ इसमें से, तो क्या बच जाएगा बताओ तो? अल्फा माइनस गामा. Are you getting my point everyone? Please note down. Minus plus minus, beta into alpha is beta alpha. Minus minus plus beta into gamma is beta gamma. मतलब हम यहाँ से माइनस बीटा कॉमन ले रहे हैं इसीलिए कि कॉलम 1 से हम अल्फा माइनस गामा कॉमन ले पाए.
इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, देखना एक बार, इसको मैं फैक्टराइज करके माइनस अल्फा कॉमन इसीलिए ले रहा हूं कि यहाँ पे बीटा माइनस गामा बच जाए। ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन इन कॉलम 1? अल्फा माइनस गामा, कॉलम 2 में बीटा माइनस गामा। अब मुझे चाहिए तीन चीज का प्रोडक्ट, मुझे दो चीज मिल गया, तो तीसरा चीज डेफिनेटली इज व्हाट इज रिमेनिंग इन द डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व कर दो, दिस इनटू दिस minus this into this. So what is minus of minus beta? It is plus beta. Now the last thing which you have to do is you have to express in this form. इस फॉर्म में चाहिए आंसर, इस फॉर्म में बस एक्सप्रेस कर दो। कैसे? इन दोनों में से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा माइनस गामा, यहाँ पे चाहिए गामा माइनस अल्फा। ओके, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, so minus into minus becomes plus. सो आई थिंक जिनका डाउट था ये सब में वो क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब हम यहाँ से सी नंबर का सिर्फ एक सम और करने वाले हैं, बाकी सारे सम सुन लो, घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी सब मतलब दो ही सम तो बचा है, दैट इज नंबर 4। ओके, वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ। So I want your attention here in number 4, कि C का number 4, and which is the most important sum in number C. C के अंदर there are total 6 questions. So out of this 6, number 4 is one of the most important question of all. I want your attention. See, देखो एक इससे ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये चीज तुम लोग एकदम बेसिक लेवल में जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि अगर एक फ्रैक्शन है और मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, you know how to form equivalent fraction. These type of questions you have studied in junior classes. हाफ को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो तुम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो। तो जैसे मान लो a by b का इक्विवेलेंट बनाना है, तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोग सेम तरह का कांसेप्ट यहाँ पे डिटरमिनेंट में भी यूज करेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि डिटरमिनेंट में अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, एक डिटरमिनेंट में अगर हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके वैल्यू में कितना चेंज फर्क पड़ता है, बताओ तो। व्हाट इज द इफेक्ट यू गेट, कैन यू टेल मी? सपोज इसमें हम k मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, बताओ तो, मतलब yes टाइम्स इट इज k टाइम्स, मतलब k टाइम्स बढ़ जाता है इसका वैल्यू, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी तुमको पता है, हम एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स में एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान देना, ये सेम लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करेगा। इससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा RHS, और उसके बाद एक और है पार्ट। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमको सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव है ये 1 1 1 लाने का। 1 1 1 आ जाए तो बहुत बढ़िया है, हम लोग के लिए पूरा काम आसान हो जाएगा। तो एक बात बताओ, देखो यहाँ पे a है a स्क्वायर है, यहाँ पे b है b स्क्वायर है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c स्क्वायर है। एक बात बताओ, यहाँ पे देखो कुछ है, ये देखो ये b into c है, c into a into b है। अगर मैं कॉलम 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे अपना दो काम हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर a क्यूब भी आ जाएगा, और हम एक बार के लिए मतलब बाद में हम लोग कुछ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। मतलब बताओ तो मुझे, a है a स्क्वायर है, यहाँ पे b into c है, तो क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कॉलम 1 में, बताओ तो। देखो ध्यान देना, a into b into c में यहाँ पे b into c है, a नहीं, यहाँ पे c into a b नहीं है, यहाँ पे a into b है, c नहीं। तो कोई मुझे बता सकता है क्या करना चाहिए? ध्यान देना, अगर मैं कॉलम 1 में a मल्टीप्लाई कर दूं, कॉलम 1 टेंड्स टू a टाइम्स ऑफ कॉलम 1, कॉलम 2 टेंड्स टू b टाइम्स ऑफ कॉलम 2, एंड कॉलम 3 टेंड्स टू c टाइम्स ऑफ कॉलम 3। प्लीज नोट डाउन,
अगर मैं कॉलम 1 में a मल्टीप्लाई कर दूं abc, कॉलम 2 में b मल्टीप्लाई कर दूं तो दो काम, यहाँ abc आ जाएगा और यहाँ पे b स्क्वायर b क्यूब आ जाएगा। कॉलम 3 में अगर मैं c मल्टीप्लाई कर दूं तो दो काम, देखो दो काम हो रहा है क्या, c स्क्वायर c क्यूब आ जाएगा और तीसरा यहाँ पे abc आ जाएगा। पता है वो क्या रहा है, हो रहा है ये कि हर जगह abc आ जा रहा है। अगर हम कॉलम 1 में a मल्टीप्लाई करें, कॉलम 2 में b और कॉलम 3 में c मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या होगा। कॉलम 1 में अगर हम a मल्टीप्लाई कर दें तो ये a स्क्वायर a क्यूब abc आ जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर b क्यूब abc आ जाएगा, यहाँ पे c स्क्वायर c क्यूब abc आ जाएगा। और पता है बाहर क्या होगा, बताओ क्या होगा, डिटरमिनेंट के आगे क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? Anyone? 1 divided ABC. 1 डिवाइडेड बाय abc हो जाएगा। क्यों बताओ तो 1 डिवाइडेड बाय a to b to c क्यों होगा, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतना टाइम्स तो वैल्यू बढ़ जाएगा ना डिटरमिनेंट का, हमको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी ना हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमको ये आंसर चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख देंगे प्रूफ, हेंस प्रूफ, इसके बाद ये आंसर चाहिए तो इक्वल टू लेके हेंस प्रूफ कर देंगे, ऐसे थोड़ी ना हम कर सकते। हम लोग को तो स्टेप बाय स्टेप हमको प्रॉपर ऑपरेशंस, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके बताना पड़ेगा ना कि ये कैसे आए। तो मैंने क्या किया कि कॉलम 1 में a मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम 2 में b, कॉलम 3 में c, तो मल्टीप्लाई करने से a मैंने बाहर 1/a किया मल्टीप्लाई, b मल्टीप्लाई करने से 1/b, c मल्टीप्लाई करने से 1/c, दैट इज 1/abc। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन दिस लाइन नाउ। देखो इससे फायदा क्या होगा, ध्यान रो 3 से हम abc कॉमन ले लेंगे। I will take common abc from row 3 and so we have a square a cube 1, b square b cube 1, c square c cube 1. Okay, you can write down taking abc common from row 3. abc कैंसिल हो गया। अब देखो बहुत आसान है, कोई मुझे आइडिया दे सकते हैं? देखो एलिमेंट दिख रहा है लेकिन प्रॉपर जगह पे नहीं दिख रहा है, बस प्रॉपर जगह पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 1 1 1 है तो ये चाहिए, लेकिन यहाँ पे रो 3 में, वहां पे रो 1 पे, तो मुझे तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए, बताओ। सर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो करने से क्या होता है कि पूरा रोज कॉलम्स में आ जाएगा, पूरा रोज कॉलम्स में आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1 चाहिए मुझे 1 1 1 रो 1 में, तो ट्रांसपोज करने से तो पूरा उल्टा हो जाएगा ना, एलिमेंट्स रो 1 का एलिमेंट कॉलम 1 पे आ जाएगा, तो वो तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ कोई और। यस, रो 3 और रो 1 को इंटरचेंज। दैट्स सिंपल, वी विल इंटरचेंज रो 1 एंड रो 3 फर्स्ट, बिकॉज़ लास्ट वीक हमने इस तरह का कुछ सीखा था, याद करो कि हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं हम लोग इंटरचेंज। लेकिन इंटरचेंज करने से मुझे क्या करना चाहिए बता सकते हो? यस, आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू में साइन का चेंज आता है सर, तो वो साइन का चेंजेस को बैलेंस करने के लिए हम आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं। डू यू रिमेंबर वी हैड डन दिस प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस क्लास एंड लास्ट क्लास? यस सर। यस, नाउ अब एक बार और हमको कुछ करना पड़ेगा चेंजेस, बताओ क्या? सर रो 2 और रो 3 में रो इंटरचेंज 3 को इंटरचेंज, रो 2 और रो 3 को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने से आगे एक और माइनस आ जाएगा, तो फिर माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आगे अपना यस एवरीवन आ गया, देखो तो आ गया, पहला वाला पार्ट आ गया। अब अपने लोग इस पार्ट को प्रूव करेंगे, तो ये पार्ट प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। You just try by making, tell me what is the next step I must do if I am finding your 1 1 1, तो बताओ क्या करना चाहिए मुझे? C1 tends to C1 minus C3. Yes, we'll make two zeros by doing like this operation like this, column 1 tends to column 1 minus column 3, column 2 tends to column 2 minus column 3. Just try once, and you have to apply one formula also. A cube minus B cube equals to A minus B, A square plus B square plus A. So everyone try this. एक बार try करो। So after this line we need to show that it is equal to A minus B, B minus C, C minus A, then AB plus BC plus CA.
नोट डाउन। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दो जीरोस बनाने से, ठीक है। तो दो जीरोस बनाने के लिए कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3. So if I do column 1 minus column 3, 0, a square minus c square, a cube minus c cube. Column 2 tends to column 2 minus column 3, 0, b square minus c square, b cube minus c cube. And column 3 remains as it is. Now it is better that we expand along row 1 and make it express it to into two order first. So if we expand along row 1, we'll have plus minus plus into इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दो. Write down expanding along row 1. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हम लोग को लाना है रिजल्ट चार चीज का प्रोडक्ट. देखो ध्यान से 1 2 3 4 चार चीज का प्रोडक्ट चला. हम लोग क्या करेंगे देखने को. सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को. फैक्टराइज का मतलब होता है प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. उसको दो या दो से ज्यादा चीज का प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको फैक्टराइज बोलते हैं. a क्यूब माइनस c क्यूब में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a माइनस b अभी जो मैंने दिया था याद है ना, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. इसी तरह यहाँ पे b माइनस c इनटू b प्लस c, यहाँ पे b माइनस c इनटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc. ऑलराइट, देख लेना थोड़ा यार छोटा हो गया, दिख रहा है ना. ओके नो सर. नाउ व्हाट कॉमन डू वी हैव हियर, कैन यू टेल मी. रो कॉलम 1 से a माइनस c कॉमन लिख रहे हैं. एक फैक्टर आ गया, दो फैक्टर आ गया. All right, you can write down taking a minus c common from column 1 and b minus c common from column 2. Now can anyone help me, like after this line, I mean इस लाइन के बाद क्या मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए 2 into 2 ऑर्डर को जैसे सॉल्व करते वैसे, या फिर कुछ मुझे कुछ ऑपरेशंस करना चाहिए, बताओ. कुछ ऑपरेशन. और ऑपरेशंस क्या करना चाहिए देखो एक बार. कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करने से c कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसके बाद कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2. ओके, if we do column 1 minus column 2, column 1 minus column 2, here you get a minus b. check कर लो. a plus c minus of b plus c, if you open the bracket you get a minus b. इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. देखो ठीक है, open the bracket, you will find that c square gets cancelled and what is left? It is a square minus b square plus ac minus bc. All right, I repeat. Write down column 1 tends to column 1 minus column 2. तो column 1 minus column 2 करने से c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a minus b. c स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ac माइनस bc. अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. यहाँ इस जगह पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ac माइनस bc. क्या कैन आई राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज a माइनस b इनटू a प्लस b, और यहाँ से c कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b बचेगा. अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, a माइनस b. So what is left? It is a plus b plus c. तो हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को, ये एलिमेंट को हम लोगों ने फैक्टराइज करके a minus b into a plus b plus c डाला. ठीक है, इसको a minus b उसके बाद a plus b plus c के फॉर्म में ला दिया.
Now what common do you have here? Can you tell me everyone? Common कुछ दिख रहा है? Yes. A minus B. A minus B. A minus B कॉमन दिख रहा है, तो अगर हम लोग A minus B कॉमन ले लें, ठीक है, अगर हम लोग A minus B कॉमन ले लें कॉलम 1 से, तो बच जाएगा यहाँ पे कॉलम 1 में 1 A plus B plus C, कॉलम 2 में B plus C, B square plus C square plus BC। अब देखो हम लोग को चाहिए था चार चीज का प्रोडक्ट, 1 2 3 4, चार चीज का प्रोडक्ट चाहिए था, 1 2 3 चीज आगे, 3 चीज आगे। अब चौथा चीज के लिए अब मुझे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि चौथा चीज ये डिटर्मिनेंट ही है, चौथा चीज ये डिटर्मिनेंट ही है। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो मुझे फोर्थ चीज मिल जाएगा इसमें। अब हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या? दिस इनटू दिस minus this into this, and if you open the bracket, समझ में क्या बोल रहा हूँ, b plus c को a plus b plus c से मल्टीप्लाई करके, और अगर तुम ब्रैकेट हटाओगे तो क्या मिलेगा पता है? It will be minus ab minus b square minus bc minus ac minus bc minus c square, ये मिल जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, सी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, बी इंटू सी भी कैंसिल हो जा रहा है एक बार, तो बच रहा है क्या पता है? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। प्लीज चेक पूरा, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बच रहा है। अब हमको आंसर क्या चाहिए, लेकिन ए माइनस बी चाहिए आंसर, ये रहा ए माइनस बी ऑलरेडी है। उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को? बी माइनस सी, ये रहा बी माइनस सी है वो भी। उसके बाद क्या चाहिए? c माइनस ए, तो यहां से माइनस ए कॉमन ले लो। उसके बाद क्या चाहिए? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहां से भी माइनस ए कॉमन ले लो। लास्ट में माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। सो व्हाट इज द रिजल्ट? इट इज a minus b into b minus c into c minus a, ab plus bc plus ac. This is what we have on the right hand side. तो ये सम लंबा है थोड़ा, इतना छोटा सम नहीं है, ठीक है? ट्राई कर, एक बार कंप्लीट करो, कॉपी करो। Now I want your attention here. Everyone see the next sum, and it is number D. एक बार ध्यान देना, पहला सम D का। And we have to show that it is equal to x square, x plus a plus b plus c. Okay, note down everyone. देखो बेसिकली हम लोग ये तीन चीज को ध्यान रखेंगे, और तीन चीज क्या है ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट है कि अगर एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर सारे एलिमेंट 1 1 1 अगर होता है तो 2 0 लाके एक्सपैंड कर दो और 2 ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो। दूसरा चीज हम लोग ये देखते हैं कि कॉमन है या नहीं। ज्यादातर जो सम से डिटरमिनेंट्स का उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर 1 1 1 है तो 2 0 बना के हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, 2 ऑर्डर में ला जाते हैं। अगर दो 0 नहीं ला सकते, मतलब 1 1 1 नहीं है, तो फिर हम सोचते हैं कि कुछ कॉमन है ये। ओके, फिर हम क्या सोचते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में कहीं कुछ कॉमन है ये, हम ये सोचते हैं। दूसरा चीज, अगर ऐसा भी ना हो तो प्लीज नोट डाउन तीसरा पॉइंट, सारे रोज को या फिर सारे कॉलम्स को ऐड करके और चेक करना, सारे रोज को या सारे कॉलम्स को ऐड करके चेक करना कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं। क्या आइडेंटिकल एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं? तो प्लीज नोट डाउन, एक याद करो, मैंने लास्ट देखो ये डी के ऊपर एक हेडिंग दिया मैंने, तुम डी के ऊपर एक हेडिंग देखो अगर, तो क्या लिखा है मैंने, देखो एक बार, रो आई टेंड्स टू रो आई प्लस माइनस एम टाइम्स ऑफ रो जे प्लस माइनस एन टाइम्स ऑफ रो के। मतलब ये क्या है देखना एक बार,
मतलब हम लोग एक रो को यूज चेंज करने के लिए हम लोग बाकी दो रोज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही रो को यूज करना है, हम एक रो को चेंज करने के लिए बाकी दो रोज को भी यूज कर सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर दैट if you are using the remaining two rows, then in that line, please note down, in that particular line you cannot do any more operation. Okay, in that particular line you cannot do any more operation. समझ में आया तो बात? मतलब अगर मान लो हम ऐसा कर रहे हैं, सपोज रो 1 10। अच्छा एक बात बताओ, क्या सारे रोज को ऐड करने से आइडेंटिकल एलिमेंट आ रहा है? क्योंकि 1 1 1 तो है नहीं, कॉमन तो है नहीं। देखो कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में अलग से कुछ कॉमन है नहीं, रो 1 से रो 3 से रो 2 से रो 3 से भी कॉमन कुछ है नहीं। तो हम सारे रोज को या सारे कॉलम्स को ऐड करेंगे। तो अगर हम सारे रोज को ऐड करें तो मुझे बताओ सबसे पहले, लेट मी जस्ट आस्क, लेट मी सी, ओके टेल मी, मानव टेल मी, मानव टेल मी, इफ आई ऐड ऑल द रोज एंड इफ आई कीप इन रो 1, what you will find in रो 1? बताओ तो रो 1 में क्या मिलेगा तुमको अगर हम सारे रोज को ऐड करके रो 1 में रख दें तो? मतलब अगर हम रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करें तो रो 1 में क्या मिलेगा बताओ? सर x plus 3a, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, x plus 3a, x plus 3b, वेरी गुड, x plus 3b, x plus 3c. अब बताओ मुझे बाकी, अब बताओ तुम ये क्या नाम है, सार्थक बताओ, यू म्यूट योरसेल्फ, सार्थक बताओ कि तुमको क्या रो 1 में आइडेंटिकल एलिमेंट मिल रहे हैं? रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 मिल करने से क्या मुझे सारे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं? नो सर, नहीं दिख रहे। अब बताओ मुझे, अगर मैं मतलब ये नहीं करूंगा, अगर मैं सारे कॉलम्स को ऐड करता हूं तो क्या आ रहा है? तुम बताओ, सार्थक बताओ, if I add all the columns, column 1 plus column 2 plus column 3, tell me column 1 में क्या आएगा बताओ? Take your time and tell me the answer. बताओ बताओ कॉलम 1 में क्या आएगा? बस ध्यान ये रहे कि yes, tell me column 1 plus column 2 plus column 3। जब कॉलम 1 कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करेंगे, हिंट दे दिया मैंने, तुम आंसर बताओ। तो x plus a plus b plus c। वेरी गुड, x plus a plus b plus c, x plus a plus b plus c, x plus a plus b plus c। अब बताओ मुझे, ये आइडेंटिकल का ही हम बात कर रहे थे कि नहीं? इस आइडेंटिकल से Yes, वो फायदा हो रहा है कि हम लोग को राइट साइड में जो x plus a plus b plus c जो है वो मिल रहा है। ऑलराइट, x plus a plus b plus c भी मिल रहा है। और दूसरा फायदा क्या हो रहा है पता है? 1 1 1 कॉमन, वो सब जो चीज है वो कहीं ना कहीं कॉमन आ जाते हैं। अब हम लोग कॉमन ले पाएंगे यहाँ से। क्या कॉमन ले पाएंगे? कॉलम 3 से हम लोग x plus a plus b plus c कॉमन ले पाएंगे। फिर टेक कॉमन, वी विल गेट 1 1 1। ओके, अब बताओ हम लोग 2 0 बना सकते हैं इजी। मान लो इसको 0 बनाएंगे, इसको 0, मतलब ये रो 1 रो 2 पे है, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 3, रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3। रो 1 tends to ro 1 minus ro 3, 1 minus 1 will be 0, 0. What will be c minus of x plus c? It will be minus x. Ro 2 tends to ro 2 minus ro 3, 0, x minus x. Now you have to expand. Can you tell me I will expand along which row or which column? Tell me. Column 1. Yes. Either column 1 or row 1, you can choose. और अपने लोगों को लाना भी है x square into a plus x plus a plus b plus c। तो अपने लोगों को जो x plus a plus b plus c जो सबसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स था वो मिल गया। अब एक्सपैंड कर दो कॉलम 1 पे लेके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
plus 1 into 0x minus x minus x. अब इसको ज्यादा दिमाग में लगाइए क्योंकि x स्क्वायर चाहिए और दिख रहा है x स्क्वायर आ रहा है। तो देखो 0 into minus x is 0 minus x into minus x is minus x square. So what is minus into minus? Plus. I hope it is clear everyone. 0 minus minus x square plus x square. है ना बहुत आसान। तो एक काम करो ये कॉपी कर लो और कॉपी करके एक सम तुम लोग ट्राई करो एंड दैट इज सम नंबर डी का नंबर 3, डी का क्वेश्चन नंबर 3 पहले ये कॉपी कर लो। I think everyone got the answer of this sum. Yes? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, very good. Maybe in the last step you'll get something like this: x plus 2a into a minus x whole square. Let me tell you one thing: a minus x whole square is same as x minus a whole square. Okay? Let's suppose a minus x whole square, एक ही बात है, यहां से माइनस n कॉमन ले लो और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं अगर है किसी को, यू कैन रेज योर हैंड। आई थिंक एवरीवन इज डन। डू आई नीड टू सॉल्व दिस सम? यस एनीवन? कोई ऐसा है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए आराम से बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनेस्टली बोल दो कि सर मैं ये स्टेप में अटक चुका हूं, समथिंग लाइक दैट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनीवन? एवरीवन गॉट? ओके फाइन, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं ये सब नहीं बता रहा हूं। ओके, is this okay? So I'm ending the class.